After a thrilling 5-wicket victory over Pakistan in Asia Cup, India refused to take the Champions Trophy from ACC chief and Pakistan's Interior Minister Mohsin Naqvi. India celebrated their Asia Cup triumph on the dais without the traditional symbols of victory. India informed the officials that they were willing to receive the trophy from Emirates Cricket Board Vice Chairman Khalid Al-Zaruni, who was sharing the stage with Naqvi. However, Naqvi did not permit this to happen. The presentation ceremony finally began after a long delay, but only individual performers were feted. Despite India's refusal to accept the trophy from him, Naqvi stood firm on the stage, and as Naqvi stood on one side for the presentation ceremony to begin, Indian players were standing within 15 yards, refusing to budge from their stand. Later, Pakistan officials were seen taking away the trophy from the field, and Pakistan skipper Salman Ali Agha's meltdown was caught live on camera during a post-match presentation ceremony. Agha was seen throwing away the $75,000 runner-up check as the crowd booed him. Earlier, the entire Pakistan team had refused to leave the dressing room for more than an hour. कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। We have decided not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India as soon as possible. There is a ICC conference in the month of November, in the first week of November in Dubai. In the next conference, we are going to lodge a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. टीम इंडिया के सारे लड़कों को बहुत बहुत बधाई। आपने जो खेल खेला, आपने जो परफॉर्मेंस दी, काबिल तारीफ थी, और एक बार पूरे भारत नहीं पूरे क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जीत 41 साल के बाद आई। अगर देखा जाए तो भारत ने 9वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया, और इस टूर्नामेंट में एशिया कप 2025 में कमाल का क्रिकेट देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो लीग मैचेस हों तो वहाँ पर अनबीटन रहे, सुपर 4 में वहाँ अनबीटन रहे, फाइनल में अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच हम जीत चुके हैं पाकिस्तान से इस एशिया कप में। तो ये झटका मुश्किल ऐसा होता है कभी कभी जब हम अनबीटन होते हैं तो फाइनल या सेमीफाइनल्स में हमें डर रहता कहीं ना कहीं, वो हमारे दिल में भी था। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो खेल खेला है, वो काबिल तारीफ है। How do you see whatever unfolded at the trophy presentation ceremony? India refusing to accept the trophy from Mohsin Naqvi, but Mohsin Naqvi being firm, and he in fact also took away the trophy, and India did not get the trophy or the medals. So Mohsin Naqvi behaved in a very bizarre manner, because it was very clear. Team India had made it very clear initially, if they reach the finals, if they win the finals, they will not accept a trophy from Mohsin Naqvi. He wears multiple hats, including that of Pakistan's interior minister. He spewed venom against India repeatedly. The Pakistani state has blood on its hands. So Team India was absolutely right in not accepting a trophy from him. So he wasn't firm. He was cussed. Now, despite his obnoxious behavior, the team's celebrations continued and the nation's celebration continued. You know, it's not a piece of metal. It's winning 1 billion hearts, and it's winning cricket, and comprehensively. India remains unbeaten. Pakistan nowhere close. I mean, as Surya Kumar Yadav very rightly had said, there is no competition. Pakistan is not India's arch rival. We are number 1. They are at number 7 or something, and they barely are able to perform. Look at the way their middle order collapsed. And as Prime Minister Narendra Modi's indicated, this is opposite Dur on field. That's exactly the way Pakistan Air Force collapsed in front of Indian Armed Forces on the 10th of May morning. So it's very clear. It's an entire nation.
And the entire controversy over the final match and the presentation ceremony is continuing as the Indian team very clearly sticking to its ground, saying that we will not take the trophy from a Pakistani official. The Pakistan team and the team captain's behavior also caught on camera as he threw away the check that was to be given to him. The Indian cricket team calling this the tribute to the Indian Army and to those who lost their lives during the Pahalgam terror attack. And at the same time, the Prime Minister of India also lauding the Indian cricket team for their win against Pakistan. And just a short time ago, my colleague and India Today's consulting editor Rajdeep Sardesai spoke to 1983 World Cup winning captain Kapil Dev on the entire Asia Cup controversy and India's stunning performance in the tournament. Kapil Dev was he has praised the Indian cricket team, and listen to what that conversation was all about. I want to ask you honestly, if you were India cricket captain, would you have shaken hands? Do you believe shaking hands is part of the common courtesy of sport with your opponent? Or you believe the situation has reached a point where you can't even shake hands with your opponents? I think I think definitely heart in heart, nobody wants to shake hand when you are not happy to play with them. But again, the cricket board have decided we will go and play. Shaking hand is not a big thing. I think we media and we people are trying to make a very big issue. I think one have to move on. You didn't want to shake hand, you didn't want to talk to them. It's good enough. It's in the tournament you played. I think again, don't make a bigger issue than that. I think we as a media also should take a responsibility. Try to let it go now. Whatever it happened. Let's move on. You played a great cricket and played like a champion. That's more important. And I think, again, media's job is their job. As a sportsman, I would say, you move on. Let's play the game and move on. Let the politician and the cricket board take the step forward. You're saying move on, but how do you move on when the Pakistan cricket board chairperson, who's also Asian Cricket Council chairperson, then walks away with the trophy? He walks away with the trophy, doesn't give the Indians their medals. Does that matter or not? No, it doesn't matter. You already shown you are the champion and the whole world have seen. One trophy is not going to make so much difference. That's why I said move on. Let's not carry on sitting and talking about the same thing. If their mind says that they want to take the trophy, okay, they lost, they still can keep a trophy. But actually champion are who have done front of the world. On the television we have seen how great cricket Indian team have played. And during the Asia Cup final, Jasprit Bumrah was in no mood to hold back. The Indian fast bowler responded to Harish Rauf's earlier antics by mimicking his fighter jet celebration after bowling him out with a near-perfect Yorker. The gesture came after Rauf's dismissal left Pakistan struggling at 141 for 9. Bumrah's reaction was widely interpreted as a reply to Rauf's provocative celebration in their previous Super 4 clash, where the Pakistan pacer had seemingly referenced cross-border tensions by mimicking a downed jet. India's 5-wicket win over Pakistan quickly took on political significance, with Prime Minister Narendra Modi likening the victory to a military operation, calling it #Operation Sindoor on the game's field. He added that the outcome was the same on both fronts with an India win. Adding to the sentiment, Indian captain Suryakumar Yadav announced that he would donate his entire Asia Cup 2025 match fee to the armed forces and the victims of the Pahalgam attack. Take a look. देखिए मेरे साथ कौन है इनको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है. इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट इंडियन कैप्टन सूर्यकुमार यादव, चैम्पियन ऑफ एशिया कप. पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी सारी होटल में है. 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं. बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं.
जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नज़र आ रहे थे। प्लेयर्स रिलैक्स्ड ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। हाँ, बस जवाब दे दिया मैंने। हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली। पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। करेक्ट। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। आपने सही कहा कि आपने उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन खिलाड़ियों को बुरा लगा होगा जिस तरह के जेस्चर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किए अगले मैच में। देखिए कैसा है कि गेम में तो सब ऊपर नीचे चलते रहता है, अग्रेशन भी आता है बॉलर्स की तरफ से, फील्डर्स की तरफ से, हर कोई जीतना चाहता है गेम। बट क्या है, उस चीज़ों में कभी आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब मैं कितनी सारी चीज़ें जो प्लेयरों ने मुझे बताई, वो जो तीनों मैचों में हुई, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ ऐसे, बट लेकिन बहुत कुछ हुआ ग्राउंड पे जो प्लेयर्स आके बता रहे थे कोचिंग स्टाफ को मुझे। बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोला फर्स्ट गेम के बाद भी और सेकंड गेम के बाद भी, कि अगर हम अच्छे से क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ओकेजन अच्छा है, अगर हम यहाँ पे भी जीतते हैं मैच, तो इससे बड़ा आंसर कुछ नहीं हो सकता है किसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट किया, उसके बाद आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी वजह से ये परफॉर्मेंस हुआ, तो आपको लगा कि मतलब गर्व महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ उस तरह की चीज़ें लिखता है? वो भी देख रहे थे आपका मैच? देखिए अभी ऑनरेबल पीएम सर ने ट्वीट करा, मतलब मैच भी देख रहे थे वो, ऐसा तो वो तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था। बट अगर कोई कंट्री का लीडर अगर ऐसे खड़ा होता है आगे आप सबों की, तो फिर आप खुल के खेलते हो, रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हो, वैसे ही खेला और बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट विशेस आए और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आए सबके, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैच में ये बताएं, टेंशन आई थी? मुझे तो बहुत टेंशन थी। नहीं, बिल्कुल टेंशन तो आती है। जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो क्या है, आपका ध्यान बैटिंग में रहता है, गेम चलाने में रहता है। बट आप जब अंदर रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बैटिंग भी कर रहा हूँ वहाँ पे और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो प्रेशर सिचुएशन तो रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर सिचुएशन के लिए वेल इक्विप्ड है। ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में खेल चुके हैं अपने स्टेट के लिए। जैसे अभी आप देखोगे हमारा डोमेस्टिक सर्किट इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से प्लेयर्स आते हैं, फिर आईपीएल में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे अच्छा इतना करते हैं। तो मेरे हिसाब से वेल इक्विप्ड थे उसके लिए और प्रेशर हमने ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब किया। आपने बड़े टूर्नामेंट खेले, आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे। ये आईसीसी टूर्नामेंट तो नहीं है, पर जो चीज़ें इस टूर्नामेंट में हो, जो प्रेशर और दबाव था, ये आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट है ये ट्रॉफी जीतना? आई थिंक ये आईसीसी नहीं था, लेकिन ये एसीसी तो ज़रूर था। एक ही अल्फ़ाबेट का फ़र्क है और सिमिलर प्रेशर सिचुएशंस बने जैसे एक आईसीसी टूर्नामेंट में बनते हैं। तो हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, जैसे हम सुपर 4 में आए कि हम ट्राई करेंगे इसको हम एक नॉकआउट के जैसे देखने के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे खेलने को देखेंगे। और हमने हर गेम वैसे ही खेला जैसे हम खेलना चाहते थे। और ये अच्छा मेरे ख्याल से एक क्या बोलते हैं टूर्नामेंट था गोइंग फॉरवर्ड। अभी वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, बट अच्छी सीरीज़ आ रही है उन सब के सामने। आई मीन मेरे बायलैटरल से तो बहुत बेटर था ये, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपको एज अ कप्तान कभी मुश्किल लगता है कि खिलाड़ियों को मैं कैसे रोकूं, थोड़ी तनाव हो रहा है? जसप्रीत बुमराह ने भी सेलिब्रेशन किया, वो तो बड़े काम रहते हैं। बाद में मैंने देखा अर्शदीप वगैरह सब वो तरह के सेलिब्रेशन कर रहे थे। आपका क्या मैसेज था फाइनल से पहले? फाइनल से पहले मेरा एक ही मैसेज था कि देखो सामने वाले अगर कुछ लिमिट में कर रहे हैं तब तक ठीक है। अगर जब आप देखो, अगर आप पानी में भी होते हो और पानी अगर सर के ऊपर चले जाता है तो आप हाथ पैर मारने लगते हो। तो अगर आप लाइन क्रॉस कर दोगे और कुछ ज़्यादा ही बोलने लगोगे तो फिर इतना भी ठीक नहीं है ना। अब गेम खेल रहे हो आप, एट द एंड ऑफ द डे गेम है, गेम को गेम के जैसा खेलो। इंटेंसिटी चाहिए, अग्रेशन ज़रूरी है, बट आप अगर लाइन क्रॉस करके कुछ और फालतू बात करने लगोगे तो फिर वो तो फिर अच्छा, आपने एक वो जो कमेंट दिया वो पूरी तरह से वायरल हो गया, ये राइवलरी नहीं है, तो वो दबाव था कि आपने अभी बोला है। अच्छा, पहले उसके पीछे थॉट क्या था? एक मतलब गेम्समैनशिप थी दूसरी टीम पे प्रेशर डालने का, या आपको लगा फैक्ट है? मेरे हिसाब से अब मैं इतने सालों से क्रिकेट पहले फॉलो भी करता था, देखता था। पहले जब 90s 2000s में खेलते थे तो अच्छी राइवलरी होती थी, तेज़। मुझे ऐसा लगता है पोस्ट 2007 और उसके बाद से इंडियन टीम बेटर क्रिकेट खेलने लगी उनके अगेंस्ट में, मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी हम टूर्नामेंट्स खेले हैं, आईसीसी हो गया, फिर एशिया कप हो गया, जहाँ भी हम खेले और वहाँ पे सब जगह हमने अच्छा ही किया। तो मैंने तो अपने प्लेयर्स को बैक करते हुए और प्लेयर्स के स्किल के ऊपर ये सब सोच के मैंने बोला कि अब कोई राइवलरी रही नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर और टाइट सिचुएशंस है वो सिचुएशंस में हमारे प्लेयर्स ने ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेली। अगर आप ये टूर्नामेंट भी देखो उनके अगेंस्ट में जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कैच करने वाले होते हैं, जहाँ पे सामने वाली टीम ऊपर थी वो ग्रैब कर सकते थे बट नहीं किया।
बट हमने जो गेम पुल किया, जब हम प्रेशर में थे हमने अच्छी पार्टनरशिप करके मैच जिताया। आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो एक टीम को एक बेटर टीम बनाती है दूसरी टीम से। आखिरी 2 सवाल, आपने अपना पूरा मैच फी जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया, कब आपको वो ख्याल आया और क्या है उसके पीछे? मैं जब ड्रेसिंग रूम गया, जब इतने देर हम बाहर खड़े थे, उसके बाद अंदर गया, अंदर जाने के बाद मेरे दिमाग में आया और फिर गौती भाई से भी मैंने बात की इसके बारे में। हालांकि उन्होंने इतना बोला नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा आया जबकि चल रहा था, जब फर्स्ट गेम से हमने जब स्टैंड लिया, तो मैंने सोचा कि आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट है टू एटलीस्ट डेडिकेट जो भी मैच फीस मुझे मिलने वाली है एशिया कप से टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, अपना देश है यार, अपनी कंट्री है, अगर आप छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने कंट्री के लिए, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी चीज़ है। बट अगर आप ऐसे करते रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। और ये आगे बहुत लगेगी हमको जब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से वो सही मोमेंट था और सही टाइमिंग था टू डू दैट थिंग। आखिरी सवाल, अब अगला पाकिस्तान भारत कभी भी मैच जब होगा तो ये आपका स्टांस जारी रहेगा, नो हैंडशेक वाला? अब वो तो पता नहीं, अब वो मोमेंट के ऊपर है कि उस टाइम क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, प्लेयर्स लोग क्या सोच रहे हैं, तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है पर इनको तो जाना मुंबई है। हाँ, हमको जाना मुंबई है, बट लेकिन अभी बहुत टाइम है उस गेम को। अभी बीच में बहुत अच्छी सीरीज़ है, बायलैटरल्स है 2-3-4 टीम के साथ, उस पर फोकस करेंगे। वो जब आएगा तब उसके बारे में तब सोचेंगे। सूर्या भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम हमसे बात करने के लिए। मैं कहूँगा ये कैप्टन ऑफ इंडियन टीम नहीं है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। और मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, जैसे इन्होंने कहा था, रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू रिकी भाई। India today also spoke with Pahalgam victim Vinay Narwal's father, Rajesh Narwal, who has hailed the Indian team for not accepting the trophy from Mohsin Naqvi. He also praised Surya Kumar Yadav for donating his match fee to the armed forces and Pahalgam victims. Let's listen in. खेल और संस्कृति ये जो होती है इन चीजों से ऊपर रहती है, बट उससे ऊपर होती है देश भावना और राष्ट्रीयता होती है। तो उन दोनों का परिचय इन्होंने दिया। और मैंने शुरू में भी, जिस दिन पहला मैच था पाकिस्तान के साथ, मैंने ये कहा था कि मैं पर्सनली तौर पर अगेंस्ट हूं, बट ये सरकार का और सरकारी जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनका एक डिसीजन रहा है, तो उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा। और कहीं ना कहीं मैं भी पर्सनली भी और मेरे देशवासी भी एक क्रिकेट मैच के और क्रिकेट खेल के खिलाफ नहीं है, उस आतंकवादी देश की सोच के खिलाफ हैं, जो कि कुछ चंद लोगों के हाथों में, सियासतदानों और चंद सैन्य अधिकारियों की आइडियोलॉजी के अनुसार पाकिस्तान देश चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की आवाम की फजीयत कराई है कुछ चंद लोगों ने, तो उसके अगेंस्ट मैं रहा हूँ। जहाँ रही पॉलिटिक्स की बात, तो पॉलिटिक्स के मामले में मैं नहीं कहता, क्योंकि हमें इस समय जो हमारी टीम ने और टीम के मेंबरान ने, मैनेजमेंट ने और हमारे कैप्टन ने जो भावना दिखाई कि एट द वेरी फर्स्ट डे व्हेन मैच वाज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान, तो ऑन दैट डे उसने उनसे हैंडशेक नहीं किया, तो अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और बिल्कुल सही किया उन्होंने। और कल भी उन्होंने क्या किया कि उनके जो पदाधिकारी थे पाकिस्तान वाले खेल के पदाधिकारी, उनके हाथों ट्रॉफी ना ले करके एक उनको मैसेज दिया है कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, उन चंद लोगों की, खेल की और तुम्हारे देश के लोगों के खिलाफ नहीं है हम लोग। सेकेंडली, अब इसमें भी देखें तो बाद में फिर इन्होंने क्या कि अपना हमारी टीम ने, टीम मैनेजमेंट ने और सूर्य कुमार देव कैप्टन ने इस ट्रॉफी को जो 22 अप्रैल 2025 का जो मैसेकर हुआ था और उसके जो विक्टिम हुए हैं उन सबको ये समर्पित की है, उनको ये समर्पित किया है इस ट्रॉफी को। तो ये जो भावना टीम ने और उन सब ने दिखाई है, तो ये देश भावना है और खेल भावना से ऊपर जाकर के उन्होंने इसका परिचय दिया है। ऐसे देश के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि जहां पर भी पाकिस्तान की टीम जाती है, किसी भी खेल की जाती है, तो उसका प्रोटेस्ट हमें ही नहीं, दुनिया के सभी देशों को करना चाहिए कि पहले अपने देश के जो आका हैं उनकी आदतों को सुधारो। किस तरह से हमारे देश में दूसरे देशों में आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, अपने यहाँ ट्रेंड करते हैं, वहाँ टेररिस्ट भेजते हो, वहाँ पर असामाजिकता फैलाते हो, अराष्ट्रीयता फैलाते हो, और वहां पर किस तरह से बेगुनाह लोगों की जान तुमने ली है, निहत्थे लोगों की, तो इंसानियत नहीं है इन लोगों में। तो ये मैसेज गया है।
After India crushed Pakistan in the Asia Cup, now a fresh political storm is brewing. BJP has shared a video of Aam Aadmi Party Delhi chief Saurabh Bhardwaj where he dared Indian skipper Surya Kumar Yadav. Saurabh Bhardwaj had said that if Sky had the auqat, then he must donate the entire match fees to the victims of Pahalgam and the Indian Army. Saurabh Bhardwaj had issued the dare 2 weeks ago. But now Bhardwaj has got a befitting reply from the Indian skipper, as after the victory in the Asia Cup, Surya Kumar Yadav has announced that he will donate the entire match fees to the victims of the Pahalgam terror attack and the Indian Army. At the same time, the opposition has scaled up its attack on the cricket team. The Shiv Sena UBT has alleged that this was pure drama and posted a video of Team India meeting and greeting Mohsin Naqvi before the tour. Take a look. अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। बीजेपी नेता ने, अमित मालविया ने आपको ये कहा था कि आप केजरीवाल के पिट्ठू हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो आदमी झूठ की फैक्ट्री है, वो आदमी पायरेटेड सीडी की दुकान है। उस आदमी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कैप्टन ने पाकिस्तान कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान के मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। हमने वो दोनों वीडियो अमित मालविया को भेजी है और हमने बताया है कि उसने दोनों से हाथ मिलाया, तुम स्क्रिप्ट चलाना बंद करो। और दूसरी बात, जो करीब 600-650 करोड़ रुपया रेवेन्यू में इंडिया पाकिस्तान के मैचों से कमाया है, वो उन सभी विधवाओं को दिया जाए, तो हर विधवा के पास करीब 30 से 35 करोड़ रुपए ये भी कहा था कि जो जीता हुआ पैसा है, क्या आप जो वहाँ की जो विधवा है उनको देना चाहिए। लेकिन सूर्य यादव ने कल पैसा दे दिया, सरकार को देना है पैसा। जो बीसीसीआई के पास 650 करोड़ रुपया है वो देना है। 2 लाख रुपए से उनका क्या होगा विधवा?